اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں۔ حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا، عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں۔ مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے؟ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے۔ تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں، چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں۔ اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا، مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا۔ تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں؟ کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو،
ये तो आए हैं कारोबार सीधा करने, फोटो खिंचवाने, फलां काम के लिए। ये तो वो जो हम देना चाहते हैं उसका तो मिजाज ही नहीं। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, मुझे शौक नहीं है। खुदा मुझे माफ कर दे उस दिन से पहले जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, तो शाम जाऊंगा तो नोट लाऊंगा। ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता। लेकिन ये कि यहाँ भी आ जाए खिताब कर दें, यहाँ भी, ओ खुदा के बंदो, हम कहाँ इस काबिल है हम खिताब करें। हमने तो ना जी एक अजान देनी शुरू की हुई, सुबह शाम एक अजान पढ़ते हैं, है ये पैगाम हजरत अहमद रजा के बारगाहे नबी के रहो बावफा। हम तो कहते हैं इधर आ जाओ, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। हम तो कहते हैं इधर आओ, अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू करो। और वो एक जुमले पे अगर तो अमल हो गया, प्यार से बातें करता रहता हूँ, सबके साथ नहीं करता, जिसका मुझे पता हो कि ये थोड़ा सह लेगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो आता हूँ तो मुझे इलाके के लोग कहते हैं उनको बुलाओ, तो मैं कहता हूँ पूरा अमल करना मेरी गलत है, तो फिर मैं बाकियों को भी लगा जाऊंगा। तो अगर तेरा ही अमल नहीं हो सका तो बाकियों को मैंने जाके क्या समझाना है। लेकिन इस कमाल को भी तो जरा देखिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो रईस आज़म हैं, मालदार हैं, बहुत बड़े ताजर हैं, लेकिन वही जनाब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन बने। यहाँ उसी वक़्त गार्ड आ जाते हैं, उसी वक़्त जनाब उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी आ जाती है, उसी वक़्त जैसे ही हलफ बर्दारी की तकरीब होती है ख़त्म, तो साथ ही वो सारी सहूलियात शुरू हो जाती हैं जो जनाब बहुत बड़े बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं होती। और इसके बावजूद वो जमहूरी होने का दावा कर रहे होते हैं और जमहूरियत का राग अलाप रहे होते हैं। यहाँ हाल ये है, इतने बड़े मालदार हैं जनाब सिद्दीक अकबर, लेकिन खलीफा बने तो सर के ऊपर टोकरा रखा, बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा मैंने मंडी में नहीं जाना, कारोबार नहीं करना, बच्चों का पेट नहीं पालना, उनके लिए मैंने कुछ कमाना नहीं। जनाब क्या मतलब, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। फरमाया वो बात ठीक है, लेकिन ये कि मुझे कारोबार भी तो करना है। अब सहाबा ने मजलिस मुशावरत कायम की। मेरी तरफ देखना मेरे मोबाइल वाले भाइयों, अब मजलिस मुशावरत कायम हुई और कहा कि हम आपका माले खजाना में से वजीफा मुकर्रर करते हैं, आप मेहरबानी फरमाएं। ये सादगी, ये रवैया, ये अंदाज असर के बाद अमीरुल मोमिनीन निकला करते थे। और कुछ यतीम बच्चियां थी, उनकी बकरियों का दूध उन्हें धो के दे के आया करते थे। अमीरुल मोमिनीन खिदमत करते, मस्जिद में नजर आते, लोगों के दुख सुख में शरीक होते, और कभी कभी उनकी आंखें आंसू बरसाने लगती तो करीब बैठे लोग उनसे पूछते जनाब क्या हुआ? फरमाने लगे बस इसी तरह एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए थे एक रास्ते में, और फिर महबूब वापस आ गए थे, मुझे याद आ गया है, तो उस याद ने मुझे रुला दिया है। इस उम्मत के सबसे पहले सूफी का नाम भी जनाब सिद्दीक अकबर ही है। वो मारिफत की खास बात, आप समझिए इस बात को, वो हकीकत पसंदी के जुमले, वो कैफ, वो सुरूर, वो लज्जत। होता क्या है, माहौल में ना बड़ी सारी खुशकी और तलखी सी आ गई है। सूफिया की जो महफिल होती थी उनमें बड़ी रौनक होती थी, ताज़ा दम लोग होते थे, अकायद के पुख्ता, फिक्री तवानाइयों के साथ चमकते दमकते चेहरे, और ताजगी आती थी महफिल और मजालिस में हाजिर होकर। ये जरा एक मजलिस देखिए बरपा है सहाबा की, इस तरह मजलिस बरपा है कि हज़रत सिद्दीक अकबर अलील है, इमाम अबू नुएम ने इसको लिखा है, और कुछ सहाबा उनकी तीमारदारी के लिए हाजिर हुए। ये जरा अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। तो एक सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर किसी तबीब को भी दिखाना था, आपकी सेहत ठीक नहीं। आजकल हम कहते हैं ना डॉक्टर को दिखाया है,
फिर लोग फौरन पूछते हैं क्या कहा डॉक्टर ने। चले खैर, आप ऐसे नहीं होंगे, वरना ऐसा भी होता है कि लोग ये पूछने के फौरन बाद फिर अपना तजर्बा भी बताते हैं, कहते मैं फलानी दवाई खाती थी, और कुछ देसी नुस्खा बना के भी ले आते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं थोड़ा सा खाएं भी मेरे सामने। ओ अल्लाह के बंदे, तू ले आया है, तू इतबार कर, खाया जाएगा, जरा इंतजार कर, लेकिन ये कि आप खाएं भी। हालांकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, कोई और मर्ज तो नहीं, उसकी रोशनी में वो नुस्खा तजवीज़ करता है। लेकिन जो साहब बना के ले आए हैं ना, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, वो कहते हैं मैं ले आया हूं, आप खा लीजिए। तो डॉक्टर को दिखाया है तो फिर डॉक्टर ने क्या बताया? तो ये आम सवालात होते हैं, लेकिन ये मारिफत वाले लोगों की महफिल है ना, कि अल्लाह के बंदों की मजलिस है ना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन अलील है, लोग उनकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, पूछा हजरत तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ, तबीब देख रहा है, तबीब देखता रहता है। हजरत तबीब ने क्या कहा है? फरमाने लगे तबीब ने कहा है मैं जो चाहता हूं कर दिया करता हूं। तो अब जो जानने वाले थे उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है? आप किस ऊंचे मकाम पर बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे हैं? तो वो सादगी, वो मारफत इलाही, वो खिदमत खल्क, वो मिजाज इस दुनिया को खुलाफाए राशिदीन ने दिया। फिर बारी हजरत उमर की आई। अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि खुद हजरत उमर फरमाते हैं मेरा और जनाब सिद्दीक़ अकबर का मुकाबला रहा उमर पर, नेकियों में आगे गुजरने का, खुद फरमाते। लेकिन जब हजरत सिद्दीक़ अकबर विसाल फरमा रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह पे जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का तायन फरमाया। यानी बज़ाहिर जिस आदमी से मुकाबला रहा, लोग कहते हैं ना मेरिट क्या है, मेरिट, ये समझो मेरिट किसको कहते, मेयार क्या? हजरत उमर को अपनी जगह पे मुंतखब किया। लोगों ने कहा हजरत आपने जनाब फारूक आजम का इंतखाब किस लिए फरमाया? फरमाया अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ, रब जब पूछेगा ना पीछे उम्मत की जिम्मेदारी किसकी लगा के आए हो, तो अर्ज करूंगा जो उम्मत में सबसे बेहतर था उसकी ड्यूटी लगा के आया। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला उन्होंने कमाल कर दिया। मैं अक्सर दोस्तों से ये बात अर्ज किया करता हूँ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ना सारे फितने खत्म करके जनाब उमर को दिए थे। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ सब काम उन्होंने समेट कर हजरत उमर को खिलाफत दी। पे जनाब उमर के लिए बड़ा आसान, हजरत उमर ने जो जानदार खिलाफत की है उसके पस मंजर में भी जनाब सिद्दीक़ अकबर की मेहनत कार फरमा। और फिर बड़ी सादगी, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, ये जो लोग बिल्कुल सादे होते हैं ना, ये बेनियासी तबीयत के लोग होते हैं। यानी जो नौजवान 4-5 हज़ार रुपया दे के बाल सीधे करवा के आता है ना किसी से, और घंटा डेढ़ बैठता है किसी हजाम के पास और बाल सीधे कराए और बड़े उसने खड़े कर दिए कुछ लगा करके, और कपड़े भी बड़े उसने रंग बिरंगे पहने, वो बेचारा परेशान भी बड़ा होता है। वो कहता है इन्ने में पैसे लाते ने दुनिया वेंदी नहीं पई मेरे यार। उसका ख्याल होता है ठहर जाएं सारे और पहले मुझे देखें, अनोखा जो बन के आया है। लेकिन जो बेचारा चारा काट के भैंसों को देख के आया उसे परेशानी कोई नहीं, बल्कि उसने बचना है फोटो से, कहीं पीछे बैठना है। सादे लोग जो होते हैं ना, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना, कोई साडा दर्दी, उनको गरज नहीं होती चीजों से। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। कुछ लोग हटते हैं, बचते। कैसा अंदाज है कि अमीरुल मोमिनीन है आप, 24 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है हजरत उमर के पास। ओ जवानों ये सुनो तो सही, धरती ने इस तरह के रंग भी देखे। इतना बड़ा आदमी और जिसके नाम से दुश्मन कांपता है,
शैतान तक रास्ता बदल जाते हैं। वो फारूक आजम। हाल ये है कि सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके कहने लगे अमीरुल मोमिनीन से अर्ज करना है कि हजरत मेहरबानी करें कुर्ता तो नया ले ले। अब तो पेबंद लगने की जगह भी नहीं रही। पेबंद का भी पता है कि नहीं? कपड़ा फट जाता था ना तो उसको रफू करा लेते थे, पेबंद लग जाता था। वो हमारी दादियां, माएँ और नानियां तो इस तरह करती थी कि वो फट गया तो फूल सा बन जाता था। एक ही होया कहते डिजाइन का डिजाइन बन गया है ते तरोपे दे तरोपे लग गए। तो ये काम होता था कई जगह, कई लोगों ने पेबंद लगे कपड़े पहने होते थे। खैर अब नहीं हम देखते, अब तो गरीब तर लोगों में भी हम ये रिवाज नहीं देखते, अब तो खत्म हो गया। लेकिन पेबंद लगे कपड़े अभी कुछ साल पहले तक मिलते थे। तो हजरत उमर के लिबास मुबारक को इतने पेबंद हैं कि मजीद अब पेबंद भी नहीं लग सकता। तो सहाबा ने मशवरा किया कि जनाब उमर से कहना कुर्ता है नया ले ले। इस्लाम में 100% जायज़ है, अल्लाह नेमत दे तो असर देखना पसंद करता है, लेकिन इतनी सादगी क्यों इख्तियार कर ली है? और फिर ये कि 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलते हैं और जनाब उमर के हिस्से में भी आते हैं, पर वो सारे बांट के रवाना हो जाते हैं। तो उनसे कहना है कि एक कुर्ता ही नया ले लें। तो एक सहाबी बोले, कहने लगे बात भी ठीक है, कहना भी चाहिए, और उस शेर का नाम भी बताओ जो उमर से बात करेगा। हाँ बात बताएं ना, कौन जनाब उमर से कहेगा कुर्ता खरीदने का? तो एक सहाबी बोले, ये देखो उनका एतमाद कैसा था। आज कुछ बदनीयत लोग क्या अंदाज इख्तियार करते हैं और उनका अंदाज कैसा था। एक सहाबी बोले और कहने लगे, मैं एक हस्ती को जानता हूं जिनकी बात हजरत उमर कभी नहीं टालते। कहा वो कौन है? का मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में सहाबा के इजमा था कि ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे की बात टाल नहीं सकते। कहां से लाए हो तुम वो चीजें उठा करके? क्यों बांटते हो उम्मत को? धरती में अगर को किसी की इज्जत करके दिखा सकता है तो सहाबा ने तो एक दूसरे की करके दिखाई है। यही तो मियार है हमारे लिए जीने का, समझने का और अपने लिए फयूज़ो बरकत लेने का। भाइयों याद रखना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला अली कहेंगे तो कुर्ता ले लेंगे। हजरत अली की खिदमत में अर्ज किया गया, फरमाने लगे बात तुम्हारी ठीक है, बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मिलने आते हैं और उमर का वही पुराना कुर्ता सारा कुछ बांट देते हैं, कुर्ता नया लेने में क्या हर्ज है? कहना भी चाहिए, बात भी ठीक है और ये भी ठीक है, मैं कहूँगा तो वो मान जाएंगे, पर मैंने कहना कोई नहीं। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं मिजाज जानता हूँ, इस मनसब के बारे में मौला अली इसकी नजाकतों से आगाह है। कहने लगे मैं अमीरुल मोमिनीन से नहीं कहूंगा, हाँ सैयदा आयशा सिद्दीका से अर्ज करो, वो माँ का दर्जा रखती है। सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज गुजार हुए सहाबा, पैगाम दिया, जनाब उमर दौड़े हुए आए। कुछ जगहों पे ना आना चाहिए, बस कुछ बातें कहने की नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे चले जाना चाहिए। कुछ लोगों की बात मान लेनी चाहिए, उसमें बरकत होती है, फायदा होता है। हर जगह दलील नहीं, हर जगह आभास नहीं। हजरत उमर फौरन हाजिर, अम्मा जी हुक्म हो। अमीरुल मोमिनीन सहाबा का ख्याल है कि बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं और नया कुर्ता पहनने में दीन मना भी नहीं करता, तो अगर आप एक कुर्ता नया खरीद लें तो हर्ज क्या है? तो हज़रत उमर फरमाने लगे आप हुक्म करेंगी तो शाम से पहले आ जाएगा, लेकिन एक बात अर्ज कर लूं। कहा कहिए। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि जिस हाल में मैं हूं ना, मैं हुजूर के सामने भी इसी तरह था। मेरी यही कैफियत थी जब जनाब सिद्दीक अकबर मुझसे बुला के मशवरा करते थे। हमें इसी हाल में हुजूर ने छोड़ा है, हम चाहते हम उसी हाल में रहें जो रंग हमारा हुजूर के ज़माना नूर में था।
بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، اٹل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا نام تو میرا وہی ہے۔ اچھا آپ ہے تو آپ بیٹھیے۔ پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے کاغذ نکالا، 2 جگہ مجھ سے خیر کہا یہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے۔ پر میں کو اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آوا، یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا، یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ یہی نویں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان۔ یہ مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارکہ ہے، مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی سارا کچھ، تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں اور کہتے تھے اے زمین اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حقداروں تک پہنچا دیا ہے، جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے۔ اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو۔ ایک شخص بیان کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیبند لگنے کی جگہ دی۔ یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ، خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا۔ ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائے، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاز جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا،
फोन पर बहस करते हैं। लोगों को ख्याल नहीं आता कि जो नाम वुजू करके लेने चाहिए तुम उस ताल्लुक से राय का इजहार करते हो। ये हसीन लोग, ये पाकीज़ा लोग, ये खूबसूरत जमात जिसने अपने वजूद और अपने किरदार से और अपने अफकार से पूरी उम्मत को खैर से भर दिया। बहुत ज्यादा बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज नहीं करनी, बस मैं समेटने लगा हूं। जवानों, एक शिकवा भी है। पहले मैं समझता था कि शायद लोगों के पास वक्त कम है, लेकिन अब जब से लोगों को मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ देखता हूं ना, तो मेरी वो सोच बदल गई है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम। मतलब उनकी भी लोग तस्वीरें देख लेते हैं और उनकी भी पोस्ट पढ़ लेते हैं जिनकी बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, और उनकी भी बात करते हैं जिनकी बात करने से मुराद सिर्फ उनको अहमियत देना है। हम तो बेचारे इस काबिल ही नहीं कि उनकी बात की जाए। भाई, चाहिए ये था कि अगर हमारे पास वक्त था तो हम खुलाफाए राशिदीन को पढ़ते, हम हुजूर के सहाबा को पढ़ते। चले, जो कोताही हमसे हुई है हम भी मानते हैं। हमने आपको नहीं बताया कि हजरत अम्मार इब्ने यासर क्या है, हम नहीं बता सके कि हजरत जुबैर बिन अवाम की शान क्या है, हम नहीं बता सके कौम को कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की अजमत और फजाइल क्या है। हम नहीं बता सके आपको कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मेरे नबी करीम कितनी मोहब्बत फरमाते, हजरत उबई बिन काब का दर्जा क्या है, क्या जलालत थी, क्या शान थी, क्या दबदबा था जनाब खालिद बिन वलीद का। काश हम अपनी कौम को सुना पाते कि किस कदर बड़ी अजमतों के मालिक थे हजरत सलमान फारसी। हजरत मिकदाद की शान क्या थी, हम तज़किरा भी न कर सके। हमने उस तरह अपनी कौम को वो सारी चीजों से आगाह नहीं किया। ये किस बसीरत के लोग थे, ये किस कमाल के लोग थे, क्या इन्होंने शाने पाई थी, क्या सोसाइटी को इन्होंने अपने किरदार से नवाजा है, किस तरह माहौल में इनके आने से हुस्न पैदा हुआ है, खूबसूरती आई है। दोस्तों, याद रखना, आज भी जो लोग चमकेंगे और जिनकी अजमतें बढ़ेगी वो हुजूर के गुलामों के गुलाम बन के चमके। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निदा, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। जवानों, एक एक बाब खोला करे, पढ़ा करे, गौर तो किया करे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या थे। जरा कभी खोल के देखिए हजरत अबू हुरैरा की अजमतें कैसी। पढ़े ना जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को हुजूर कि वो गुलाम जिनको महबूब ने फरमाया ये नेक आदमी है। हज के सबसे ज्यादा मसाइल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते। इतना बड़ा आदमी, इतना साले आदमी, इतना आलिम आदमी, लेकिन क्या करें, ना हमारे यहाँ जुमू के उन्वानात बनते हैं, ना इनके नाम पर हम महफिल का इनकाद करते हैं, ना हम ये करते हैं कि रिसर्च करने वाले लोगों को इस तरफ लगाएं। ये बड़े खूबसूरत और अजीम लोग हैं। हुजूर ने ऐसी जमात तैयार की है जिस तरह मेरे नबी की मिस्र कोई नहीं, इस तरह ना हुजूर के सहाबा की कोई मिस्र है, ना औलाद रसूल की कोई मिस्र। इनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ये गैर मामूली लोग थे, ये कमाल लोग। इनफिरादियत अल्लाह ने दी थी। जिसको पढ़ते जाएंगे आपके दिल के दरीचे खुलते जाएंगे, जहन वुसअत पाता जाए, आप महसूस करेंगे अंदर नूर दाखिल हो रहा है। उन लोगों की बातों में कभी ना आना जो बेचारे सिर्फ अपनी तकरीरें चमकाने के लिए और सिर्फ ये कि चंद जुमलों का सहारा लेकर कुछ मंतकी और फलसफी बातें बयान करके माज़अल्लाह इन लोगों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं। बड़े कमजोर लोग हैं, उन बेचारों के पास तो ऐसी बात नहीं है जो काबिल तवज्जो हो। ये लोग ही बहुत बड़े हैं, इनकी बात ही बहुत बड़ी है, इनका किरदार ही बहुत बड़ा है। बस जुड़े रहना, जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। हुजूर के सहाबा
नबी पाक की औलाद के साथ जमे रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमेशा हमेशा तबीयत ताज़ा है, अकीदा मजबूत है और अमल का रास्ता आसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल महफिल ज़िक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।